हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फ्रिक्शनल क्लास 11 का ये फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें हम स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लॉज ऑफ फ्रिक्शन को देखेंगे। साथ ही हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को समझेंगे और जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन है उसको कैसे वेरीफाई करते हैं इसके भी बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शन। तो एक सतह पर जब दूसरा वस्तु खिसकना चाहता है या खिसकने की कोशिश करता है तो एक ऐसा बल होता है जो उससे खिसकने का विरोध करता है। इसी बल को हम क्या कहते हैं, अपोजिंग जो फोर्स होता है उसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। व्हेन ए बॉडी B is kept on a static body A in such a way that their plane surfaces are in contact, then a force has to be applied to draw B over A. This force has a certain limiting value, so that if the force be even a bit less than the limiting value, the body B will not move. It is evident that a force acts on a surface of contact which opposes the motion of B in respect of A. This opposing force is called the force of friction. It depends upon the roughness of surface. On increasing of roughness, the frictional force increases. अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और मतलब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो when the body is in rolling motion, the opposing frictional force is called rolling friction. अब इसके बाद हम समझते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर कोई वस्तु स्लाइड कर रहा है, when a body is sliding over another, then the frictional force is called the sliding frictional force. From experience, it is seen that it is easier to move a heavy barrel by rolling than by sliding. It is clear that the rolling friction is smaller than that of the sliding friction. So a body can move along the surface of another body in two ways. It can either slide along the surface or roll over the surface. When it is sliding, the frictional force along the surface is called sliding surface. जब स्लाइड कर रहा होगा तो स्लाइडिंग जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। अब आइए देखते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो when a surface is in contact with another surface, it requires a force to draw the body along the other surface in contact. If the force is small, the body will not move along the surface. This smaller force which cannot move the body on the surface of other body is example of a static frictional force. Gradually, when the drawing force is increased but the body does not move, the static friction increases. A time comes when the drawing force has reached such a value that the body is in the point of sliding or moving. In this state of force due to friction acting on the body in the opposite direction is maximum. This force is called limiting friction. Thus, the limiting friction brings the body on the average of movement, and when movement has begun, a smaller force and keep the body in uniform motion. This smaller force requires to keep the body moving in uniform way along the body is called kinetic friction. अब इसके बाद हम देखते हैं कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो इसमें हम 4 नियम की चर्चा करेंगे। पहला कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स मूविंग ऑन द बॉडी। अब जो ये वस्तु जिस दिशा में मूव करना चाह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, जिस दिशा में बॉडी मूव कर रहा है उसके अपोजिट। दूसरा लॉ कहता है द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस इन कंटैक्ट इफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी F and the normal reaction be R, then F is proportional to R. तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो नॉर्मल रिएक्शन का। इसी को हम संक्षेप में मैथमेटिकली लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू R। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरा नियम का। तीसरा नियम क्या कहता है, द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस इन कंट्रैक्ट। तो ये जो एरिया ऑफ सरफेस है इन कंट्रैक्ट में उस पर डिपेंड नहीं करेगा। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कंट्रैक्ट। तो मतलब ये स्मूथनेस, रफनेस
और मतलब जो नेचर ऑफ द सरफेस इस पर ये निर्भर करेगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कंट्रैक्ट। अब हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इट इज़ क्लियर दैट Fs इज प्रोपोर्शनल टू R। Fs बराबर फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो Fs बराबर μs इंटू R। हेयर μs इज कॉन्स्टेंट known as the coefficient of static friction and its value is Fs upon R बराबर limiting force of friction बटा नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू के बराबर हो गया म्यू के अपॉन आर। तो म्यू के क्या होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। आर क्या होगा, तो नॉर्मल फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मतलब हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर के, और बराबर कब होगा, जब हम एक कांस्टेंट से गुना करते हैं। ये कांस्टेंट क्या हो गया, तो म्यू एस। इसी म्यू एस को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम समझ सकते हैं। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द लॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हमको चाहिए हॉरिजेंटल प्लेन चाहिए, वुडन ब्लॉक चाहिए, और मतलब एक पुल्ली चाहिए। उसके बाद एक जो पैन मास होता है, वो एक मतलब उस पर जो वेट पैन होता है जिस पर कि हम वेट को रखते हैं, तो वो चाहिए। तो द नेसेसरी आर्टिकल्स नीडेड फॉर द वेरिफिकेशन इज हॉरिजेंटल प्लेन, वुडन ब्लॉक is kept whose mass is none, with a hook attached to the block is tied to one of a string, the other end of which is tied to a weighted pan. The thread passes over a pulley. ये सब हो गया हमारा मटेरियल। अब हम क्या करते हैं, तो अब जो है द वुडन ब्लॉक डज नॉट मूव along the surface by the weight of the pan alone. Then weight are gradually added to the pan. Since the block does not move along the surface, it shows that a force of friction is acting against the drawing force. This verifies the first law of friction. Now the weights are increased gradually till a time comes when the block is on the verge of moving. In this case, the frictional force has reached its limiting value F, which is equal to the weight of the pan together with weights kept on it. The weight of the block with weights kept on it provide the normal reaction. The ratio F बटा R gives the coefficient of friction. तो हम क्या करते हैं कि वुडन ब्लॉक से एक धागा बांध करके पुल्ली होते हुए वेट पैन पर डालते हैं, और फिर वेट को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। और वेट जब ऐसा एक समय आता है जब प्रॉपर वेट में ये जो वुडन ब्लॉक है वो उस मूवमेंट में आ जाता है। इससे पहले क्या करते हैं, तो F बटा R, F मतलब बराबर हो गया हमारा F1 बटा R1। तो F1 क्या हो गया, तो जो हम इस पर वुडन ये जो हमारा ये वेट पैन पर जो वेट देते हैं, मान लीजिए कि शुरू में दिए 50 ग्राम, फिर दिए 75 ग्राम, फिर 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा F1 F2 F3, और उसी के अकॉर्डिंग हमारा R1 R2 R3 हो जाएगा। तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो सेम होगा, ये हो गया म्यू। अब ये हम ग्राफ खींचेंगे फोर्स को y एक्सिस पर और मतलब R को x एक्सिस पर, तो ये ग्राफ क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लिख सकते हैं म्यू बराबर यहाँ तो म्यू बराबर AP बटा PA हम लिख सकते हैं।